all the seats were full in the morning, and now 2 people are outside queuing up to be getting into the hall. Anyways, I'm happy to see you all. Hi, I do recognize a few faces here, and I presume you all are interested in acting, want to be an actor, but that's an incredible job, very responsible too, because come to think of it, that our very existence of the species, the human species, is why? Because we are storytellers. We are the only species that is a storyteller we can imagine. And let me elaborate how. Because if you see, everybody has a language, every living being, जानवर जितने भी हैं जंगल में, if you go to safaris you would know call करते हैं यार. अगर if the tiger is on the prowl, animals call. So they have a language to say, look out, be safe, the tiger is on a prowl, right? So human beings also have a language. अगर जहाँ भी पूछना है रोक के हिंदी में कह सकती हूँ, या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स, राइट? इज दैट अ प्रॉब्लम? किसमें हिंदी में बात कर लें? तो फिर ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा स्पीशीज है जो मगर जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ रियलिटी बयां कर सकते हैं. हाँ, कि शेर आ रहा है छुप जाओ. चिंपैंजी कह सकता है कि look, there's a banana tree, let's go grab some bananas. पर एक ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो खाली रियलिटी नहीं बयां करता है, इमेजिन्ड रियलिटी. क्या फिक्शन जो होता है, जो है नहीं कॉन्क्रीट पर इमेजिनरी में हमें कुछ दिखता है कहानी, और फिर हम इमेजिनेशन तो करते हैं, उसको हम आगे स्टोरी टेलिंग भी करते हैं. दैट वी आर द ओनली स्पीशीज हु कैन से कि आसमान में ऊपर बादलों में भगवान बैठा हमें देख रहा है, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे. ये आप चिंपैंजी से बोल के देखिए कि भाई थोड़े बनाना शेयर कर दो, भूखे हैं आप, थोड़े बनाना शेयर कर दो, योर गुड डीड्स विल टेक यू टू द मंकी हेवन, एंड देन इन दैट हेवन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ बनानास टू ईट. देगा इंसान दे देगा. एंड कम टू थिंक ऑफ इट, द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर बीइंग टोल्ड is money, the paper money. And why I say so, it's the most successful story ever being told, because the whole humanity believes in it, right? कहीं पे भी आप जाएं, एक यूजलेस पीस ऑफ पेपर को आप एक अनजान आदमी को अनजान कंट्री में दे के रियल बनानास खरीद सकते. So that's the greatest story ever told, and all of us believe in. Now I can think of another great story that is being told. Religion, God, but I'm not even going anywhere there because हमको ये session conduct करना है. Right? Idea of nations, politics, religion, everything is based on imagined reality, fiction. And that way, because we had this imagination, and we could then not just imagine but tell that stories to the humankind, that we were able to organize, cooperate and spread out. इसलिए हम survive कर गए. हजारों हमारी तरह के species थे which did not, because they only had language. So that is how powerful storytelling is. हमारा वजूद ही है कि आज हम बचे हुए हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियां सुना के ऑर्गेनाइज करते रहे अपने आप को अगेंस्ट द अदर्स. बेचारे वो वहीं रह गए. दैट्स व्हाई चिंपैंजी स्टिल प्ले विद बनानास एंड स्टिक्स, एंड वीव डिसाइफर्ड द डीएनए एटम, और चांद पे पहुंच गए ह्यूमन बीइंग्स. सो आई presume all of you want to be actors.
तो फिर क्यों करना चाहते हैं एक्टिंग? जो यहाँ एक्टर्स हैं, यू एंजॉय, और क्या 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 है, क्यों पैसा, फेम एंड मनी, Tell a story. to tell a story. Your story, whether it's your story or somebody else's very clever story, you have the medium to tell it. That's right. If you want to prove yourself, to act or to perform multiple characters in a way, you get that confidence. Yes, I'm a versatile, and you feel that confidence after you get the appreciation from all over. Okay, so all of the- fame. Fame is one thing. So okay, then I hear money, fame, storytelling. But there are other ways of making money. Why do you want to be an actor? There are other better ways of fame. And also like better ways to get a role even nowadays, I would say, because मैं जब बात करती हूँ, आदिल हुसैन आए थे उस दिन, कह रहे अब जो मेन लीड मिला है वो एक्टर को, लाइक यू नो व्हेन यू शॉर्टलिस्टेड द लास्ट 2, उसमें एक्टर पीछे रह गया और जो ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे उनको ले लिया. तो इट्स कॉमर्स मार्केटिंग. Why is Priyanka Gandhi, Priyanka Chopra, so because now they want an Asian in the movie, so more eyeballs, right? हाँ, that okay, I will please बता दीजिएगा, वो भी एक टॉपिक है कि politicians, but we'll come to it later, otherwise the workshop will be very long. So हाँ, so then so of course there's commerce, but that is not the reason to act. Please know that ये profession ऐसा है जिसमें 100% देने से काम नहीं चलता है, 200%. तो प्लीज अगर आपका पैशन है, ऑब्सेशन है, इसके बिना आप सांस नहीं ले सकते. That is the only valid reason you should even think of being an actor. Right? I mean, mastery of the craft is the only goal. Everything else is worthless. और ये बहुत जिगर का काम है, बहुत मुश्किल काम है. सारी, जैसे मैंने कहा, स्टोरी टेलिंग अभी कितना इम्पोर्टेंट है. एंड आई कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, बिकॉज पिक्चरों में देखा है आज जो एक्टिंग लेवल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट टैलेंट इज लाइक वाटर विदाउट अ कंटेनर. बिना मटके के जो पानी होता है, क्या वेस्ट, बह जाता है. तो अगर आपका टैलेंट है एक्टिंग का, देन यू मस्ट लर्न अ टेक्निक, बिकॉज विदाउट अ टेक्निक, मतलब कोई दिशा चाहिए, सो दैट योर ग्राउंड वर्क, योर रूट्स सॉलिड बेस है, फाउंडेशन टू ग्रो ऑन. अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो एक्टिंग इज लाइक, अगर आप पेंटर हैं, गाते हैं, कैसे, क्यों गाना, आवाज अच्छी है, आपका जो रेंज है, सुर पकड़ लेते हैं, कुछ तो होता है ना. जो आर्टिस्ट है उसको कुछ समझ है, डांसर के पास कुछ फिजिकल स्किल्स है, बट एक एक्टर ऐसा है जो एनीबडी हु कैन वॉक एंड टॉक विल से आई एम एन एक्टर, और फिर कहते काम नहीं है. बिकॉज मतलब जो भी वॉक एंड टॉक कर लेता है एंड दे से आई एम एन एक्टर, हु आर वी टू से नो? ठीक है भाई हो, बट दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट स्किल्ड. और गुड न्यूज इज एक्टिंग कैन बी लर्न. कोई पैदाइशी एक्टर नहीं होता है. जिन्हें देख के लगता है ना कि ये तो बड़ा ऐसे ही तो है, इट्स सो सिंपल. दैट इज सच गुड एक्टिंग दैट द आर्ट इज इनविजिबल, देयर क्राफ्ट is not visible to us, that they make it seem so effortless and simple कि अरे हम भी कर लेंगे. सिर्फ 20 साल रिहर्सल और प्रैक्टिस की उन्होंने वहां पहुंचने, सिर्फ 20 साल. सो एनीवेज, कमिंग टू द टेक्निक्स, आपने सुना होगा ली स्ट्रैसबर्ग, स्टेला एडलर, माइजनर, स्टैनिस्लावस्की. तो इंडिया में मतलब आप सबने ही कर लिया होगा मेथड. एक ही तरह की एक्टिंग देखती हूँ मैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, NSDB, बाहर भी, इंडिया भर में. तो स्टैनिस्लावस्की में भी आप लोग ने कुछ वाकिफ हैं. तो स्टैनिस्लावस्की के मेथड से ही जो वर्ल्ड में एक्टिंग में जो चेंज आया, रियलिज्म, ट्रूथफुल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग. उससे पहले तो रोमांटिसिज्म
थिएट्रिक्स, पारसी, थोड़ा थिएट्रिकल, बड़ा मूवमेंट, बहुत ओरेटरी स्किल, ये सब गुण होने चाहिए थे, बट नॉट एनी मोर. बट दिस इज नॉट नाउ. 100 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1930s when the way the world acted started moving towards realism, right? और फिर स्टैनिस्लावस्की के ये तीनों स्टूडेंट्स थे, ली स्ट्रासबर्ग, स्टेला एडलर, माइजनर, और सारे अमेरिकन ग्रेड्स जिनके नाम सुने, इन्होंने ग्रुप बनाया 1930 में, ग्रुप थिएटर, राइट? अब उन्होंने वहीं से कुछ अपना जिसको जो पसंद आया लिया. एंड सो ली स्ट्रासबर्ग जो थे वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे कि इमोशनल रिकॉल, मतलब हर चीज़ के लिए बचपन से या लाइफ एक्सपीरियंस से दुख कब हुआ था वहाँ से खींचिए, फर्स्ट टाइम व्हेन यू किस्ड वहाँ से ले आइए कुछ, यू नो, वॉट एवर. ही केप्ट गोइंग बैक टू इमोशनल रिकॉल. गाइज प्लीज स्टॉप मी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है. हाँ, पक्का? एम आई लाइक रीचिंग यू गाइज? तो फिर जब he died, Stella Adler was teaching and she told her students कि 1 मिनट का मौन रखिए क्योंकि a great man of acting theater has died. और जब 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा इस आदमी ने एक्टिंग को जो डैमेज किया है ना वो 100 साल लगेंगे करेक्ट करने. क्योंकि हर चीज के लिए बचपन में जाओ, हर चीज के लिए इतनी इमोशनली यूज करो, खुराक उनकी आपके क्या हुआ. बट दैट्स अनदर टॉपिक बिकॉज दैट डैमेजेस यू, लाइक अपने ही जख्म कुरेदने. यू वांट टू हील, यू वांट टू बी फुल एंड लाइक हैव फन एक्टिंग, नॉट लाइक कि आप वो ट्रेजेडी किंग, ट्रेजेडी क्वीन ये सब बन जाए. मतलब हमें अमिताभ बच्चन या जो है 80 साल तक एक्ट करना है ना, अब 30 साल में ही हम डिप्रेस तो नहीं होना चाहते, तो दैट डजंट वर्क फॉर लॉट मेनी रीजंस. अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. बट देन सो ये हुआ, तो मैं आई बोरो हेविली फ्रॉम माइजनर. ऑल्सो सेम ग्रुप है, वही स्टैनिस्लावस्की से निकले, बट इट्स द सिंपलेस्ट, मोस्ट ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड वेरी इफेक्टिव अप्रोच, राइट? जब आप रियलिज्म की ट्रूथफुल, नेचुरल. तो अब बात आती है कि ये सब शब्द तो हमें बोले जाते हैं, रियलिज्म, रियलिस्टिक फिल्म, राइट? पर एक्चुअली जब मैं देखने जाती हूँ कोई प्ले, कोई काम यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ कोई वर्कशॉप, इट्स फार अवे फ्रॉम दैट. बिल्कुल दूर दूर तक रियलिज्म से कोई वास्ता नहीं. क्यों? क्योंकि मैं देखती हूँ सारे स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, फैसिनेटेड बाय डायलॉग बाजी, कि डायलॉग बोलना ही मतलब. और अब क्या करें, कंडीशनिंग ऐसी है कि स्कूल से ही ऐसे सिखा. एटलीस्ट हम तो जहाँ गए थे सिंधिया स्कूल में कड़क यूनिफॉर्म होती थी उस दिन, तेल वेल लगा के चोटी, और इसी अब पता नहीं मेरा जनरेशन तो लाइक इट्स वन लाइफ टाइम बैक दैट दिस हैपेंड, बट मुझे वैसे ही याद है. और सारा दामोदार आवाज़ और ये सब, और सब एक सही करते पाते थे कि भाई ऐसे बोल लें. बट एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, if dialogue, talking is acting, then Charlie Chaplin, who's the only complete actor in the world, would have not had a career at all. उन्होंने तो बेचारों ने एक शब्द नहीं बोला, और वही कंप्लीट एक्टर है ना? तो ये धारणा जो मैं देख, इतना ड्रामा. फिर दूसरी प्रॉब्लम मैं देखती हूँ, पीपल थिंक इमोटिंग इज गुड एक्टिंग, इमोशन, राइट? और रोने पे तो भाई जो रो लेता है, ड्रॉप ऑफ एन हैट, तो क्लास में सोचते चलो टीचर्स फेवरेट, हर सीन के बाद हम कुछ ड्रामा कर रहे. बट द थिंग इज दैट इफ emoting please understand is acting, then my friend who cries at the drop of an hat, उसको आज तक ऑस्कर मिल गया होता है ना? So another गलत धारणा. Then the third thing that I see is too much
ट्रेनिंग ऑन, ऑफ कोर्स अब तो बॉडी बिल्डिंग भी आ गया है. हमारे जमाने के एक्टर्स तो मोटे होते थे एंड लाइक खा पी पाते थे, मोर नॉर्मल. बट अभी इट्स लाइक a lot of importance on the body movement. So like all traditional drama schools will start with body movement and voice and speech. And I'm not saying that that is not important. Yeah. But all the training in speech and movement and voice will only make a very skilled puppet. ठीक है ना, बहुत स्किल्ड पपेट हैं जो लगते भी हैं, एक से दूसरा पहचान में नहीं आते हैं, एक ही से धर्रे में कार्डबोर्ड कट आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि व्हाई? बिकॉज दे हैव ओनली वर्कड ऑन देयर एक्सटर्नल Very mechanical. on the external aspects. But what they have missed is that emotional core. And that is where you have to be training, because emotional core, your emotional core is what sets you apart from the other person. We are so unique. जैसे अंगूठे का एक impression होता है ना, that's all that we can offer, because हमसे खूबसूरत, हमसे ज़्यादा अच्छी आवाज़, हमसे ज़्यादा बढ़िया डायलॉग, मतलब है ही कोई ना कोई. तो हम क्या ऑफर करेंगे? Is that thumb impression that is so unique. So your training has to be what is unique about you, who are you. And I'm a psychologist, so I realized that you will be surprised that there is a persona that we have for the society ki oh, like today I'm well behaved, soft, not really soft spoken, kind, generous, compassionate, and like all the good things. Nobody wants to say I'm vain, I'm full of anger, I'm rude. ये तो हम नहीं दर्शाते. So we always pick up something to be like a title और उसी के इर्द गिर्द खेलते हैं socially. Everybody, some are of course rebels without a cause. ये भी होते हैं teenagers, है ना, बस जबरदस्ती आंख दिखा रहे हैं सब. तो हमने एक टैग लगा दिया. More than that, I've realized that as a psychologist that is not such a problem, because घर आके बिस्तर पे सोते हैं, पता है ये तो टैग था, मैं तो और कुछ भी हूँ, there's more to me. But more than that, there is a persona that हमने अपने आप को भी झूठ बोला हुआ है, that we tell ourselves also, like you know I'm this and that. But जो अखबारों में हम पढ़ते हैं that we've given a tag to ourselves also, नहीं मैं ये नहीं कर सकता. बट ये कौन लोग हैं जब अखबार पढ़ते हैं कि गर्लफ्रेंड के टुकड़े करके बैग में डाल दिए, माँ बाप को घर से निकल. सो दैट्स somebody amongst us. So then for an actor you have to develop all the emotion, all the spectrum of human emotion there is. अपने आप को एक टैग में मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए. और फिर वही रियलिज्म, ये वो जो भी है, इतना सुनते हैं. अब मैं प्ले देखने गई 4-6 दिन पहले, और ऑफ कोर्स रियलिस्टिक, क्योंकि वही फैशन है, रियलिस्टिक प्ले कर रहे हैं. अच्छा देखने गई नाउ, उसमें बात करते करते एक सीन में जो एक्ट्रेस थी उनको चाय बनानी थी, उठ के गई. शी हैड अ मेल फ्रेंड, जाके चाय बना रही थी केटल से, और चीनी वीनी डाल के हिलाना था. बट when she reached there, she realized that both the cups were full of tea, and then suddenly she panicked. I saw shock on her. और फिर उन्होंने ऐसे एक एंगल किया, और फिर ऐसे ऐसे करा, फिर ऐसे चीनी फिर ले आई. So the only real moment I saw in that entire play was that panic and shock on it. And all plays are done like that. Most acting is done like that. जो कर ली रिहर्सल में, मजा आ गया, उसके पीछे भाग रहे हैं. No living truthfully, no real moment that we've lived there, and then we talk of realism, right? But what about if someone really acting well? अभी बात करते हैं, अभी वही कर लेते हैं. तो what is acting well? What is acting well?
Oh, so now let me put it this way. और एक short stout दिखा कोई हरी स्किन का और विगली एंटेनास, तो हमें तो पता चल जाएगा ना मार्स से आ गया. इतनी पिक्चरें जो देखी कि मार्शियन आ गया, तो विल बी वेरी इंटरेस्टेड. एक्टर्स एंड क्यूरियस है कि हाय हाउ इज लाइफ ऑन मार्स. गुड. अच्छा, तो फिर अर्थ कैसा लग रहा है. बहुत अच्छा. ऐसी जब बात होगी तो 2 मिनट में वो पूछ लेगा आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे बड़े गर्व से हम एक्टर हैं. जो आपको तो एक्टर है, तो अरे मार्स में एक्टर्स नहीं होते भाई, बताओ ये क्या बला है, ये कौन होते हैं. तो ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे आप लोग, तो एक्टर हैं, क्या बोलने वाले हो उसको. बताइए भाई, कुछ एक्टर लोग बताइए क्या जवाब देंगे. आई एम क्यूरियस टू नो. यस. हम तुम्हारी एक्टिंग करके दिखा देते हैं, जब पूछना. तो फिर वो मिमिकिंग होता है, वो मिमिकिंग है. मिमिकिंग नहीं, मतलब आपको लगेगा कि वही बोल रहा है उसके स्टाइल में, और उसका मिमिकिंग और मिमिकिंग, लेकिन हम एक्टिंग तो एक्टिंग है. मिमिक्री और एक्टिंग हम ट्रांसफॉर्मर्स हैं, हम कुछ भी बन जाते हैं. आप कुछ भी बन जाते हैं. बहुरूपिया. Suppose you tell him that I'm going to be what I'm going to show you what I would be like if I came to Mars, and you show him, and then he realizes that that's acting. You want to tell him what acting is. That's what I do today. That okay, do. And how will you show that? I'd imagine something that this is how I'd feel if I was on Mars. A certain amount of fear, a certain amount of wonder. I'd feel that and I'd show him. Okay, again then that is what I said, feeling, emoting. You are approaching it from the emotional point. Okay, because we are short on time, let's quickly come to what is acting. Acting is living truthfully under imaginary circumstance. ठीक है, तो living truth, अभी पहले truthful, ठीक है. Truthful, truth for any art, भी इनकी वाइफ पेंटर है, जो भी. Truth is the blood of any art. Without it being truthful, it does not touch a human spirit. दिल तक पहुंचता ही नहीं. कभी ऐसे देखा है, ओह क्या पिक्चर देखी थी, बेटा तो बाप लग रहा था, माँ उसकी गर्लफ्रेंड लग रही थी, जापान में थे पर लग रहा था चांदनी चौक में. वाह, बहुत अच्छा काम. नो ना, तो truth, it's the truth that touches us. And then there is imaginary, under imaginary circumstance. तो imaginary circumstance ही है हमारा. ये पैराडॉक्स है कि हम truthful, real, be truthful. मगर यहीं बैठ के जब सेट में महल में महारानी हूँ और यहाँ से मुझे नाला दिख रहा है, उसके पीछे झुकी, मेरा महल यहीं खत्म है. पिक्चर में भी और थिएटर में भी, आपको विंग से आगे. तो फिर हमारा काम ही ऐसा है. फिर ट्रूथफुल होना कह रहे हैं, बट सब कुछ इमेजिनरी है. जो मेरा बॉयफ्रेंड बन रहा है, हेट दैट गाय, और जब भी क्लोज सीन्स हैं वो अनियन खा के आता है ताकि मेरा काम बिगड़ जाए, लेकिन मैं कर, राइट. सो द थिंग इज कि दैट्स द पैराडॉक्स. पर एक्टर्स का इसीलिए मुश्किल काम है कि उसमें सच्चाई से काम करना. नाउ टू लिव ट्रूथफुली. ट्रूथफुल हो गया अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंस. और इमेजिनरी तो देखिए, अगर हैमलेट देखने गए हम, ठीक है, कमानी में हैमलेट हो रहा है, 5 मिनट में इफ द एक्टर्स आर गुड, आप भूल जाते हैं कि ये तो डेनमार्क का प्रिंस नहीं है, ये तो डेनमार्क ही नहीं है, हम कमानी के चौथे रो में बैठे हुए हैं, राइट. एंड सो इट्स जस्ट दैट हाउ गुड एंड ट्रूथफुल द एक्टर्स आर. दैट प्रोडक्शन इज दैट आप जुड़ जाते हैं और 2 घंटे बैठे रहते हैं. तो दैट इज वाई यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट. अब आ गया लिविंग ट्रूथ. तो लिविंग, अब लिविंग क्या है, आप लिव कर रहे हैं. Yeah, I'm alive हाउ डू यू से दैट. because I'm breathing, I'm eating, I'm excreting. गुड. सो आप अलाइव हैं, लिव कर रही हैं. I'm still stuck on that, like your truthfulness.
who decides that? Is truth relative? Okay, Or we there- will is come there to any- the Is question. there any absolute truth? I will Yeah. come to that. We'll take it in the question because let me just finish the definition and then I take. Yeah, I'm living because I do what I want. Like I'm Good, passionate good, about. good. I I want to love do that. that because doing. आपने भी वही कहा कि हमें पता है living because सब क्या बता रहे doing कुछ करा खाना खाते You हैं can feel what सांस. you're passionate about. You know about it. Yeah, so then अब कुछ कर रहे हैं सांस ले रहे हैं खाना खा रहे हैं एक्सक्रीट कर रहे हैं राइट तो डूइंग तो जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है टू लिव ट्रूथफुली इज टू डू ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंस अब हाँ, किसी ने मेरे मुंह से प्रियंका गांधी निकल गया था तो किसी ने कहा था हाँ वो भी एक्टर हैं बट नो बिकॉज कम टू थिंक ऑफ इट जो पॉलिटिशियंस एक्टर हैं या जब हम लोग एनरोल होते हैं एक्टिंग कि हमें पता है हम अच्छे एक्टर हैं कैसे भाई जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी मेरे जिस दिन नहीं जाना था ये तो मैं बहुत ही सुनती हूँ पेट दर्द का मैं ऐसा ड्रामा करती थी माई पेरेंट्स वुड बी फूल्ड स्कूल में जब मैं बोर होती थी तब भी मैं बुखार का नाटक करती थी इतना रियल और मेरे टीचर्स मुझे घर ये एक्टिंग नहीं है ना क्योंकि ये लोग हैं मक्कार ये रियल लाइफ ये है मक्कार रियल लाइफ में झूठ बोल रहे हैं और कलाकार कौन होता है एज ऑपोजिट टू द मक्कार्स जो इमेजिनरी झूठे उसमें एक ग्राउंडेड ट्रूथ करके आपको पेश कर रहा है सर्विंग द पर्पस ऑफ आर्ट ही इज लाइंग फॉर द पर्पस ऑफ आर्ट rooted in the truth of that movement. तो कलाकार मक्कार. So then the thing is कि okay आप लाल टी-शर्ट आपके नाम में कितने अल्फाबेट्स हैं? Please look at him. हमारे पास एक्टर हैं कितने अल्फाबेट है नाम में? 8. You. How many alphabets in your name? I want the full name now. 11. Count them again. 5, 6, Yes. तो क्या जब ये आपके नाम में कितने फुल नेम में कितने हैं? 9. आपके नाम 8. तो यहाँ तक गिन के बैठे थे तो देखिए एक्टिंग अगर आपने एक्सप्रेशंस देखे जो लोग ने शुरू में गिना हाउ शी वाज डूइंग इट फ्लूइडिटी ऑफ इमोशंस फीलिंग am I sure unsure okay इन्होंने भी by the time we came here सब कुछ खत्म हो चुका था आर्ट now and see doing is by doing your emotions are free जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है fluidity of emotions in an actor तो आप तो कुछ गिन रहे थे शिद्दत से पर आप तो कितना खूबसूरत एक्टिंग यू वर अलाइव यू वर रियल यू वर इन द मोमेंट हियर एंड नाउ ये पहले निकल गए थे आगे मोमेंट से क्योंकि इन्होंने एंटिसिपेट किया आर्ट वैसे ही हम करते हैं सीन में 555 रुपए 75 पैसे ये लीजिए और लेने वाला भी थैंक यू जैसे यहाँ तक आते आते हो गया तो वी नॉट लिविंग द मोमेंट वी आर प्रिटेंडिंग बट इफ यू लिव ट्रूथफुली डू ट्रूथफुली आपको जो सब सीखना है ना एक्टिंग में वो उसका बाय प्रोडक्ट है उसमें फिर अंडरलाइन यहाँ मैं थोड़ा हंसूंगी डरूंगी घबराऊंगी कि सही गिन लिया अच्छा फिर उसके बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसे ही तो करते हैं फिर हम लोग इमोशनल बट जरूरत ही नहीं यू हैव टू डू ट्रूथफुली जो मैंने कहा बी इन द मोमेंट वही प्रेजेंस है वरना आप या तो एंटिसिपेट करके आगे निकल गए या फिर घबराए हुए हैं तो पीछे ही हैं अभी लम्हा यही है जीने के लिए so that right I have a question related to this. yeah Doing truthfully, I understand. But if I do, for example, if I have to cry in a scene, okay, and if I'm doing it truthfully, then Stuti is doing that. She cries can like we that. come back again when in the question Yes. because that's I get where I you're going I just finish the definition and open it for question okay so then
सो यू डिड इट ट्रूथफुली। जिन्होंने भी काउंट किया सच्चाई से, प्रिटेंड तो नहीं किया। और जहाँ आप कह रही हैं, हाँ आप कह रही हैं क्या कि मैं कर रही हूँ या फिर कैरेक्टर, ऐसा ही कहीं आ रही थी आप, मैं समझ। तो जब आपने किया तो आपका क्या नाम है? स्तुति। स्तुति ने किया या ऐश्वर्या राय गिन रही थी स्तुति गिन रही थी। या बाजीराव मस्तानी गिन रही थी? स्तुति। तो यू गॉट योर आंसर। इट्स ऑलवेज यू डूइंग इट, ऑलवेज यू डूइंग इट। इसीलिए वो बहुत गलत धारणा, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कैरेक्टराइजेशन सीन। एक और भूल गई जो त्रुटि दिखती है व्हेन आई सी इसकी, हर को जैसे बताइए कुछ करके हर कोई सीन बनाना चाहता है, वही जैसे कैरेक्टराइज, ये सब बहुत बात की बात है और इम्पोर्टेंट बात नहीं है फॉर योर ट्रेनिंग एज एन एक्टर। ये याद रखो कि आज तक कोई एक्टर पैदा नहीं हुआ जो सीन बना दे और वहीं फंस जाते हैं और पहली लाइन से ही वहीं अटके रहते हैं। इट्स लाइक क्विक सैंड, वो जो रेत होती है ना, जितना सीन बनाएंगे ना वो फिसलता जाएगा और टाइम खत्म हो जाएगा। सीन तब बनता है जब वन एक्टर कम्स टू डू समथिंग, other comes to do another thing, and by the accident of both of them being in that same space, whatever unfolds, that might be, if you don't come in the way, अगर आप उसके आड़े ना आए, सीन बनाना है और खराब ना करें तो वो सीन बन जाता है। वही कैरेक्टर का भी यही बात है जो आप पूछ रहे हैं। तो यू नो व्हाट, एक्चुअली तब से आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ये जो लेटेस्ट गाना है ना, ये चल रहा है कंटिन्यूसली और मेरे दिमाग में कि इसकी लिरिक्स क्या है, जस्ट टेल मी यार, इसको समझ लूँ। नहीं चल रहा है, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। यहाँ पे गाना, हाँ मतलब आई कैन हियर कहीं दूर से एक आवाज आ रही है। Are you playing with us? नो, क्या लिरिक्स है, क्या लिरिक्स है? देन यू किसको सुनाई दिया? आप ही को सुनाइए। थैंक गॉड, बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और अगर किसी को सुनाई देता तो फिर बहुत तगड़ी मेडिसिन लिख के देनी। पर जो बात है वो सुनाई दिया या नहीं? सबसे पहले तो जो प्ले है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है वो पढ़ूंगा फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड तक अफकोर्स पढ़ूंगा, और जो उसमें मेरा किरदार है उसके बारे में पढ़कर क्या समझ आया मुझे, तो उनके पॉइंट नोट डाउन करूँगा पहले तो, क्योंकि मैं लिखता जाता हूँ तो जैसे जैसे दोबारा पढ़ते पढ़ते समझ आने लगेगा मुझे, तो जाहिर सी बात है समझ तो आने लगेगा जब तक वो पढ़ता रहूँगा और उसके बारे में सोचूंगा कि वो इंसान कैसा है, वो क्या कर रहा है और मतलब क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें। थैंक यू। किसी और को इससे अच्छा तरीका पता चल रहा है कैसे बन जाएंगे हैमलेट? ओके, टाइम की नज़ाकत देखते हुए इसे ही कि वेरी गुड प्लेस एक्टिंग इज डूइंग, लिविंग को अपन प्रैक्टिस डूइंग अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंस हमेशा इमेजिनरी नहीं, तो फिर गुड प्लेस टू स्टार्ट इज ना कि क्या सोच रहा है, कितना भाई बहन, माँ बाप, कैसा बैकग्राउंड, इज ऑल रिसर्च। वो उससे आपका एक्टिंग पे एक्चुअली ऑन द फ्लोर कोई फर्क पड़ता नहीं है। यू फील सेफ, करिए ये सब, यू फील सेफर, मोर कॉन्फिडेंट कि मैंने कुछ करा है। रिसर्च डज नॉट ट्रांसलेट इनटू गुड एक्टिंग ऑन द फ्लोर। तो सबसे पहले एक्टिंग इज डूइंग, तो हम क्या करेंगे, क्या कर रहा है हैमलेट, ठीक है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, सोता है, सपना देखता है, उसमें उसके फादर आ जाते हैं, उसको एक सीक्रेट बताते हैं, घोस्ट देखता है, सीक्रेट बताते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं भाई एक्टर्स को ले आओ और एक ट्रूप बनाओ, फिर स्क्रिप्ट लिखता है, उनको ट्रेन करता है। तो ये करना तो आसान है ना अभी, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये तो हमें सपना देखना आता है, खैर सीक्रेट रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर चलो मान लेते हैं हमने रख ली और इस तरह से एक्टर्स हायर करना, ग्रुप बनाना, स्क्रिप्ट लिखने की एक्टिंग लिख रहे हैं, थोड़ा सिखाना, सब आ गया तो बन गए हैमलेट।
Not really, but that's where you start. Good place to start. Solid, like 50% हो जाएगा, बाकी सब कुछ बाद में आएगा. So good news is that इस तरह से हम सब level playing field पे हैं actors, क्योंकि physically finite actions हैं, उतना ही है जो हमारा बाकी के ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. 2 हाथ, 1 नाक, 2 आँख, 2 लेग्स. क्योंकि जो भाई मैं कमाल की ऐसे नहीं हूँ एक्टर कि भाई मैं तो पेरिफेरल विजन से कर पाती हूँ, बट मेरी आप लोग कर पाते हैं, लेकिन मैं पीछे भी देख पाती हूँ, इसलिए मैं ग्रेटर एक्टर. नो, इफ गॉड इंटेंडेड मुझे भी पीछे 2 आँखें दी होती तो वी ऑल आर ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट. तो टू डू क्या करना है हमें आता है, सीखना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि क्या कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, कितने एक्शंस पॉसिबल हैं. दैट इज वेयर टू स्टार्ट. डूइंग ट्रूथफुली इज द कॉर्नरस्टोन, द मेन जो जान है फॉर ट्रूथफुल एक्टिंग, राइट. और उसके बाद मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब एक्टिंग करनी सीख लें, एक्टर बन जाएं, तो प्लीज जस्ट बी ह्यूमन, नॉट एक्टर्स. बिकॉज सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, सी एक्टर्स वो पता नहीं क्या अजीबो गरीब एक्शंस, इमोशंस और मुंह बना, लाइक दिस सीज टू बी. अगर कहीं किसी ने कोई बादशाह का रोल दे दिया तो पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं, ऐसे देखते हैं, स्पीच बदल जाती है उनकी चाल. बट वो नहीं है. अकबर बादशाह भी ह्यूमन था. जब आप पढ़ें बुक जो अकबरनामा में, तो धोती पहन के आगरा के बाजारों में घूमते थे ऐसे, और वहीं लाइक इंटरैक्ट करते थे. लाइक जस्ट लुक अराउंड, दे आर एज, इवन मोदी जी और हूएवर एज ह्यूमन एज अस. बट वो कहाँ आता है, तब आएगा जब आपकी कॉस्ट्यूम आ जाएगी. अब ऑब्वियसली बादशाह है, ज़रेब अख्तर है, अगर यूरोपियन है तो फैंसी कॉलर्स, ऐसा कुछ तो फिर आपका ऑफकोर्स, जैसे अब मैं कैजुअल क्लोथ्स में हूँ, आई कैन मूव freely, but the moment, like even I am in some costume, a sari, maybe I sit more ladylike, I talk. वो सब कॉस्ट्यूम कराता है. You are talking all about after acting. Acting कैसे करनी है तो बता नहीं. एक्टिंग करनी है डूइंग. एक्टिंग सोचो भी नहीं उसको क्या करना है. सोचना ही नहीं. मैं बताऊं बताए क्या, एक्टिंग में सोचना ही सबसे बड़ी गलती. हाँ, वो तो हम लोग कहेंगे इसको सोचो, उसको आत्मसात करो, नहीं, उसके वो सब character को. वही सब बता रही हूँ कि वो ही गलत है. नहीं तो आप कैसे हो, मैं बताती हूँ सेम पर्सन. जस्ट 1 मिनट दो, फिर ये इस पे आ जाता है. सो आई फिनिश बिकॉज देयर इज डीपर thing that she wants to understand. I am finishing by saying, do not be actors, be human in whatever character जो भी आएगा उसके साथ ये हाव भाव हो जाएगा आपके पास. और secondly, acting is कैसे सीखी जाए. एक्ट योर ब्रेन्स आउट. हर मौके पे फ्लोर पे आइए, करिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है. मेरा लेक्चर सुन के एक्टर नहीं बन सकते, ना पीपीटी देख के, क्योंकि अगर वो करती तो मैंने लता मंगेशकर, बेगम अख्तर इतनी सुनी है कि मैं गा रही होती आज. तो बात ये है कि कैसे सीखी जाती है एक्टिंग. जैसे साइकिल, बिल्कुल साइकिल की तरह. बचपन में ना कभी हमने पीपीटी देखा कि पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन की मूवी देख लें, फिर किसी लेक्चर में जाए कैसे साइकिलिंग करनी है. नो, साइकिल लाए, बैठ गए, और कोई बड़ा बहन, भाई, माँ बाप, किसी ने आपको एज ए कोच सहारा दिया कि गिरोगे. और वैसे ही मैं देती हूँ एक्टिंग. गुड टीचर्स नेवर टेल यू हाउ टू डू, एक दिशा दिखाते हैं. तो वो है, और फिर वो हैबिट बन जाती है, काइनेस्थेटिक मेमोरी, कि फिर आप कभी नहीं भूलते हो. साइकिल अगर एक बार सीख ली, जिंदगी भर. दैट इज वाई स्किल ट्रेनिंग इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज गुड हैबिट्स, जैसे वो कह रहे, सोचना ही नहीं है एक्टिंग में. बिकॉज द मोमेंट यू थिंक, एक्टिंग इज लाइक अ स्पोर्ट. और जो एक्टर्स हैं जैसे चार्ली चैपलिन, अगर हम में से कोई वैसा एक्टिंग कर लेगा ना, एक सीन हड्डियां टूट जाएंगी. लाइक द फ्लूइडिटी इन हिज बॉडी, कुछ कहीं एक वो ही नहीं, क्या 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 नहीं, जस्ट द पोस्चर. तो
जैसे ही वही मैं बता रही हूँ, गलत धारणा है ये। चौके छक्के जो अगर आप क्रिकेट देखती हैं लगते हैं एक्टिंग के, और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बोल रही हूँ कि जैसे ही दिमाग आ जाता है ना, यू हैव टू डू बिफोर यू थिंक, यू हैव टू एक्ट बिफोर यू थिंक। और एक्टिंग में सीखना ही है, क्योंकि हमने अपने आप को 28, जब ये बच्चे आते हैं 23, 24, 26, आप बड़ी कंडीशन है। 2 साल का बच्चा जो है ना, भगवान ने हम सबको अव्वल दर्जे का एक्टर बनाया था, पर उसके आड़े आ गई कंडीशनिंग सोसाइटी। तो हमको हम क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं जब आप फंसे बच्चों के साथ जाइए, उन फट से लाइन जो है ना इमेजिनरी क्रॉस करके डॉक्टर बन जाते, भूल ही जाते हैं कि ये हाउ रियल दे आर। हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें धीरे धीरे कंडीशनिंग सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर रहें। और ऐसा है बेटा, कितना खेलोगे चोर सिपाही, यू नो, इजंट इट नाइस टू प्ले ब्रिज, गो फॉर गोल्फ, क्रिकेटर, ऐसे समझ आ जाता है। पर एक्टर्स कौन है who want to still play cops and चोर सिपाही, cops and robbers? हैमलेट क्या है? सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ कॉप्स एंड रॉ। सारे अमिताभ के जो भी देखते हैं वही तो खेल कर रहे होते हैं, चोर सिपाही। ये बहुत गलत धारणा है। जैसे वो रिसर्च भी, ये सब ट्रांसलेट नहीं होता है इनटू गुड एक्टिंग। आज अगर आप देखें 3 तरह के एक्टर्स होते हैं, बहुत ग्रेट इमोशनल रेंज, यहाँ से लेके ट्रेजेडी किंग से लेके कॉमिक टाइमिंग अव्वल, देन कैरेक्टर कि भाई पॉपर बन जाते हैं, और फिर ये रिच बिजनेस रिच बिजनेस मैन है। फिर तीसरा है इंस्टिंक्टिव, स्पॉन्टेनियस। तो जब आप कास्टिंग डायरेक्टर से पूछेंगे दुनिया भर में किसको हायर करोगे, स्पॉन्टेनियस, बिकॉज टाइम इज मनी। टेक्निक इसीलिए बदल गई, कोई आपको इतना समय नहीं देता है। आए आप, अच्छा आपने एक्टिंग की, चलिए करके खर्च से, आप नहीं कर पा रहे, वहाँ इतने स्पॉट बॉयज होते हैं, सब हमारे ट्रेनिंग के जाते हैं। जो 2 बच्चे यहाँ बैठे हैं, जब मैं फिल्म मेकिंग भी कराती थी तो भाई लाइट का रिफ्लेक्टर लेके खड़े हो जाओ, कुछ नहीं तो बॉम्बे जाओगे, तब 800 रुपये का रेट था, मिलेगा। और वही कि मौका, अच्छा नहीं हो रहा है इस एक्टर से, हम तो ट्रेंड हैं, चलो कर दिया, आपको मिल गया। स्पॉन्टेन, वो जो सोच है ना, इवन एज साइकोलॉजिस्ट जो आप कह रहे हैं सोचना, बता नहीं रही आप कैसे एक्टिंग सोच, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, जब कभी आपका ऑपरेशन, एक्सीडेंट कुछ होता है तो आपको सबसे पहले जो आपको शौक है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर डॉक्टर नर्स होगी तो आप क्या नाम है, कहाँ रहती है, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, ये उनको हमारे से कुछ, वो दिन के 200 पेशेंट है ना, उन्हें याद रखना है, इसलिए पूछते हैं ताकि वी गो इनटू आवर माइंड्स। और जैसे दिमाग लगा लेते हैं, इमोशन रिलैक्स हो जाता है। ऑपरेशन के बाद भी यही होता है, पर एक्टर का काम क्या है, इमोशनल उथल पुथल, वल्नरेबिलिटी। तो दिमाग लगाएंगी तो ये शांत हो जाएगा, इसलिए दिमाग नहीं लगाना। और इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत जिगरा, जो बच्चे आजकल जिगरा चाहिए एक्टिंग के लिए, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू ओपन योर शर्ट, जिम गए 2 साल और शर्ट उतार के, पर टू ओपन योर सोल, टू शो योर वल्नरेबिलिटी इज द ट्रेनिंग, टू ब्रेक द कंडीशनिंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इज द ट्रेनिंग। बिकॉज जैसे हर, मेरी भी एक लहजा है बोलने का, आपका किसी का एक्सेंट होता है, लाइक दिस कंगना रनौत, दिस रानी मुखर्जी, लाइक दीज वॉइसेस, none of that is perfect, but when they act from that truth of emotional core and take every moment to moment truthfully, they become good actors. वरना सब एक से ही बोल रहे हो। ये जवाब है अभी आपका कि नहीं? अभी वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बोला करना है, तो एक्टिंग रियल कर पाई, वो कैसे कर पाई वही तो आपको बताना है। हाँ, तो वही वो तो सिचुएशन में फील करके ही बता सकते हैं।
आपको लाना पड़ता है आपको सिचुएशन में। आपको अभी नहीं, actually, मुझे एकदम हाँ, बुढ़िया की हाँ, एक्टिंग करनी है, जब तक मैं सोचूंगी कि वो बुढ़ी हूँ, मैं उसमें को उस बुढ़िया को अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपनी सोल को उतारना पड़ेगा। नो ओके नहीं, कैन आई से otherwise- अच्छा एक मिनट आपने आपको 5 मिनट दें वो बुढ़िया की सोल लाने के लिए, हम करके दिखाएंगे। नहीं, मैं अपने लिए No, no, because no, मैं you know ऐसे what? सोचती हूँ, अगर वो मैं कर नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एक्ट्रेस, हाँ, हाँ। लेकिन अगर वो कर सके तो बस कंगना पर रनौत बन सुने, जाए, वो तो- झांसी की रानी कर दी, हाँ, कर दी, हाँ, क्योंकि हाँ। उसका फील क्या है झांसी की नहीं, रानी, नहीं, नहीं, हाँ। उसी हाँ, जब उसमें ये चीज आ गई then she could act like that. हाँ वो तो वो है, अब मैं उसमें मैं उतरना ही शायद कठिन है, अगर हम समझाना उसमें उतर जाएं। May I add something to it? Because we both are professors, so we do face it. Because Yeah. when I teach my students, they ask like, how do you understand that? How do you understand the meaning of new poems or new texts and all? So I said, I say it's the same thing. It's always through experience. It happens. You have with experience. It's not like diving into one text and you should think that's You have but the the- experience. See, listen, what happens yes, is yes, what yes, happens yes. is the more you read, the more you experience, Can I those say iron something? frames they fall, and then you are into it. कैन आई से समथिंग? Yes. मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये बात कही कि जो इस तरह का काम देखते हैं उन्होंने 20 साल लगाए, एंड वही मैंने अभी कहा, द वही मैंने ओनली कहा। वे टू लर्न एक्टिंग इज एक्ट योर ब्रेन्स आउट का मतलब 20 साल आप फ्लोर पे जैसे ही मौका मिले करें, करते रहें, You have to practice. है ना? ये चीज नहीं है। तो यही तो बताया ये नहीं, आप practice word मत use करिए। मैं और भी करें। भी प्रोफेसर हूँ, और I'm a- सब करें। नहीं, और दूसरी बात तो ये आपने कि जो कहा वो सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे दूसरी That's बात how you वो do. बोल दिया था, ये सब पॉइंट्स बता। अब प्लस ये भी एक बात है कि आपकी एक्टिंग बहुत अलग हो सकती है, धारणा ऐसा तो है नहीं कि जो मुझे पसंद है तो आई वेलकम इफ यू do not understand or agree with how but I have already said 20 years and I've already said act your brains out means 20 साल का रिहर्सल, और ये अमेरिकन ट्रेनिंग भी है जो मैं माइजनर कर रही हूँ, 20 साल कहते हैं। हमारे कथकली भी 20 साल, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा होती थी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बनराको, जापानीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड एनी आर्ट फॉर्म विल ओनली कम बाय रिहर्सल, but then what, how Practice to makes it chant? perfect. But one question: when people want to become hero and heroine, not actor and actress, immediately in their 20s and all, they don't have any experience. What is your take on that? See, as I said that, देखो, आपको फेम और मनी के लिए एक्टर बनना है, यू आर वेलकम, वही आई एम सेइंग, शी इज वेलकम। देयर इज अ दादा कोंडके, देयर इज अ राखी सावंत, who am I to say they are bad? Who am I to say they are bad? Everybody is welcome, and I love that there's more view, so that we can have a dialogue, right? सबका अपना भाई, दादा कोंडके भी हिट थे, दारा सिंह भी हिट थे, और जैकी चान भी हिट है, और हो सकता है रियलिज्म जो अब हम फिक्सेटेड हैं चला जाए, क्योंकि वेस्ट में 2 साल से जो पहले ऑस्कर म्यूजिकल्स को मिले वो तो हम माहिर हैं, 60 साल से गाने बनाते हैं जो रियलिस्टिक, फैंटास्टिक, रोमांटिसिज्म है। पर मैंने वही कहा, रियलिज्म से जो मुझे पसंद है वो वैसा अप्रोच करते हैं, पर राखी सावंत भी बन सकते हैं, कोई LSD में क्या सिखाते हैं? रियलिज्म। This was my point. Nice. This realism versus a little bit over. Let me say, put it this way, may not be the right way, but a little more over the top. There are Broadway musicals, for example, which is what I'm very fond of and I performed in. If you get too realistic, you're not going to be able to carry the musical forward. And the audience. This, Very good. for example, let's say in Chicago, the actor. Roxy Billy Hart. Flynn. No, Roxy Hart or Billy Flynn, for example. I know the Billy Flynn part. If he's realistic as a lawyer, it's not the same fun. Can I say For me, something? I'm very glad you asked that question, because ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि realism is a slice of life. Because अगर आप वहीं रह जाओगे तो where is that fantastical, magical work that happens in realism? ये गलत धारणा। It's life to art is the same as grape and wine. It's not, मतलब सेम चीज नहीं है। So in realism
we take from life, but how wine is where, see, doing truthfully opens, it's the key to open जो बहुत strict grammar है classical form की. कल एक बहुत अच्छी पिक्चर भी है तानसेन पे. Everything is improvisation, spontaneity. When good actors act, जैसे मैंने कहा spontaneous, वो सब तैयारी है 20 साल की. But जब actual performance is, every day is improvising. Even in the way आपका तबला और कथक की dancer, every day is improvisation, even with the music. So कितना भी traditional art form हो जिसकी बहुत strong grammar है, at the end of it again, the day you're performing is all spontaneous. But The what true I've artist never understood from does the that same. very, very useful example that you gave about the names, the numbers and Yeah. the names. The same Billy Flynn, if he incorporates that sort of thing in his acting, it doesn't contradict with the fact that it's over Can the I top. come? Can I come? You were limiting doing to just that physical. Now doing once we start. See this. I only have half an hour here. Doing is that अगर आप act कर रहे हैं on camera, then maybe your director says you have all this space. एंड ये लाइब्रेरी है, देन ऑफ कोर्स आप ढूंढ रहे हैं किताब, वहाँ जाएंगे. यू हैव द लिबर्टी टू डू सो मच. देन द डायरेक्टर विल टेल यू भाई नहीं, मिड शॉट लग गया, लाइब्रेरी का सीन है, तुम टेबल के पीछे बैठे हो, ठीक है. देन अगेन यू कैन हैव सम मोर डूइंग इफ यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर दैट you know, okay, then I've really already restrict. got, and then ये है पानी लिया, maybe you bring out a sandwich and there's enough to do. But then again your director says no, अब लाइब्रेरी में मुझे तुम्हें वहाँ भी नहीं दिखाना है और cameras here. Then what do you do? Okay, I have to show whatever the scene might be, that I'm nervous, alone, and just the swallow of that thuk is a big doing. It catches. Okay, and if the camera comes right here, that only your eye, then there are techniques I've done with these. What are the doings that then there are 3-4 things that an actor can do. Think in character, 3-4 kind of thinking, and then you are alive as an actor. And whenever somebody says इस scene में कुछ नहीं करना है, waiting का scene है, आप तो दोनों डायरेक्ट, तो क्या वेट करते हैं मुंह खोल के कोई? That is when आप फंसते हैं. अच्छा, तो मतलब और कुछ डूइंग, अरे क्या ढूंढे. यहाँ पे भी कई बच्चे हायर हुए थे, वो रॉकी क्या डोनर जो भी है, कौन सा पिक्चर, विकी डोनर. तो वही था कि जो नए लोग हैं तो क्या वेटिंग में फटाफट वो मैगजीन, भाई तुम ये, क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे, ये दो बैठे भी है, और वो रवि जो था हमारा चाय पिलाने वाला, तो एक कम पढ़ रहे थे, तो हमने रवि को कहा यहाँ बाजार का सीन है, यहाँ बैठ जाओ रवि, और ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, बिकॉज कहीं और फोकस है. तो वो रवि ऐसे करके बस सांस रोके. अब सबसे ज़्यादा अटेंशन जब स्टेज पे कोई ऐसा नया आ जाता है ना, जो एक्टिंग पे जो दरबान बनाते, तो भाई सांस लेना भूल जाते हैं. डूइंग तो वो भी है, दे आर जस्ट लाइक दिस, और आप सब छोड़ के यही है भाई गिर ना जाए, सांस तो ले ले. और रवि और हमें कट करना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे था कि इनका रुक. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि in 30 minutes I can't cover everything, but there's way of doing. Realism does not mean life, it takes from life, because actors are wonderful liars. ऐसा तो कुछ, तभी मैं कह रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस. हैव यू एवर किल्ड योर ओन चिल्ड्रन? नहीं तो फिर मीडिया तो आप कभी प्ले ही नहीं कर पाओगे. भाई हमने तो मारे नहीं, हमें पता नहीं. I think we have also on the two same thing. Are the Broadway people going for realism? Like, Yeah, see, Chicago, man. I mean, like, are they really trying to bring in realism? Okay. What, there's a theatrics that No, but Can I the say? realism that example that you gave, exactly what came to mind, that you can combine the two, Yeah. they're not incompatible. या सी गलत धारणा जो मैंने पहले भी शुरू किया कि समझ ही नहीं है कि क्या है. बिकॉज
रियलिज्म इज ऑल्सो हेयर एंड नाउ. जैसे वो चाय बना रही है, क्या हमने ऐसा ट्रेन किया है भाई? ऐसा ट्रेन है कि हर, और क्या ट्रेनिंग है, हर मोमेंट की ट्रेनिंग है, क्योंकि आप सीधे तो पूरा सीन और पूरी पिक्चर नहीं करोगे प्ले. तो क्या जीना है ट्रूथफुली और रियली, लम्हा 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 लम्हा, लम्हे बनते बनते ट्रूथफुल सीन बनते बनते जो भी स्क्रीन या, तो बात है हियर एंड नाउ. और वही मैं कह रही हूँ, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन राग, कथक, कथकली, जो भी आपके गुरु कहते भाई ना एक पैर, पर जिस समय आप प्ले कर रहे हैं, अब वो तो मजा आ जाता है उनको, तो वो अपनी दो और ताने और वो तबला or reacting to the audience will change the way you Exactly. behave on stage. तो हमारी धारणा ऑफ रियलिज्म इज वेरी नैरो, बस वर्ड समझना, वही मैंने समझी. But the actor is always reluctant because in his mind he is a narcissist. Most of the actors are. So how is the relationship between a director and an actor's close? Because it's a lot of Okay. fiction in there. सी, सबसे बड़ी बात इन आर्ट, मतलब रियलिज्म भी वही आपकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी. कुछ लेंगे आप हेयर एंड नाउ, प्रेजेंस, केमिस्ट्री, कि उस लम्हे में दो लोग कुछ कर पा रहे रादर देन सीन बनाना. जब मैं किसी से पूछती हूँ मैम मैंने आज अपना बेस्ट किया, मैंने भी बेस्ट किया, पर वो प्ले फ्लॉप था क्योंकि आपस में कुछ नहीं कर रहे हैं, बैकग्राउंड स्पेस से इंटरैक्ट नहीं किया. सो यू इवन इन ऑडिशन आप तो देखते होंगे कि जब कोई आता है, आई एम कमिंग, घुसता है कमरे में, आप ऑडिशन देने बैठे, आप उसके घुसते तक देख लेते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि भाई रात को 4 फ्रेंड्स के साथ दारू पी ली, एंड यू कैन सी दैट ही इन हिज बॉडी, यू कैन सी दैट ही इज लाइक काश मैंने कल रात को प्रिपेयर कर लिया होता. या जिन्होंने बहुत प्रिपेयर कर लिया इज अहेड ऑफ टाइम, वेयर ही इज सेइंग दैट भाई आज तो मैं 1 नहीं 3 पिक्चर साइन करती हूँ. राइट आपकी बात. ये सबसे पहले एक बात सुनिए, इन एनी परफॉर्मेंस आर्ट फॉर्म देयर इज वन रूल, एंड व्हाट इज दैट रूल, जो याद रखें. Listen the director. देयर इज नो रूल, ब्रेक बाउंड्रीज. जैसे वो एक्ट करना चाहती हैं करें भाई, आप डायरेक्टर का गला काटे, थप्पड़ मारे, खुद डायरेक्टर की सीट पे बैठ जाए, मुझे कोई, देयर इज नो रूल. वही आर्ट है बाउंड्री पुश करना. ऐसा जब होता है, अभी ओपन मैगजीन है जिसकी मैं बहुत फॉन्ड हूँ, वेरी फ्यू गुड मैगजीन्स, आर्टिकल है ऑन सोलो, लॉट ऑफ माई गर्ल एक्टर्स हैव स्टार्टेड डूइंग सोलो प्लेज, जो इंडिया में टॉप पे हैं इस समय, जो क्योंकि उनको डायरेक्टर्स पसंद नहीं थे, स्पेशली वो लड़कियों पे है क्योंकि उनको मेन डायरेक्टर्स से प्रॉब्लम है कि पुश करते हैं टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, दिस दैट. तो आप अपना कीजिए, आप डायरेक्टर बन जाइए. अब तेज अनुराग कश्यप जिसने जो बिना स्क्रिप्ट के, उनको ये सब पता है बिकॉज वो एक्टर रहे हैं 20 साल, हर तरह के घूमे हैं, हर तरह के गुड बैड परफॉर्म, तो वो उन्हें पता है ये कैसे होगा सजेशन, एंड ही विल जस्ट लीव यू टू इम्प्रोवाइज. और कभी कभी तो जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कट बोल देते हैं. अब जब आप टेंशन से हट गए, अब आप कर रहे हैं एक्चुअली दिमाग से हट के कि चलो ये फन, और वो अच्छा डायरेक्टर कट के बाद का सीन है. तो डायरेक्टर कितना समझदार है, उसने ये सब समझा नहीं समझा, कंट्रोलिंग है तो उनकी हार है. क्योंकि देखिए हम और आपको कितने भी होशियार हो जाएं, हमारी नॉलेज लिमिटेड है. कि मैंने कह दिया भाई पिंक कलर कल पहना ना, आपको 5 ही पिंक पता है, अगले को 13, पर दुनिया में अनलिमिटेड नॉलेज और चीज़ें हो सकती हैं. तो द मोमेंट यू थिंक आई वांट टू कंट्रोल एज अ डायरेक्टर, यू आर लूजिंग, बिकॉज आप कितने भी होशियार हो, देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू नो. But end of the day, director is the boss. In a way, captain of the ship, because also that he sees the whole picture. और आप अपना इधर से लोगों को फारिग, मैं यही हूँ,